ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا بڑائی کبریائی بادشاہی شہنشاہی اللہ رب العالمین کے لیے جس رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے اپنی مقدس گھر میں دین حق سیکھنے اور سکھانے کا موقع نصیب فرمایا. جتنی بھی حمد و ثنا شکر و سپاس بیان کیا جائے اس ذات اقدس کے لیے کم ہے اور بے شمار درود و سلام ہو رحمت للعالمین سید الکونین امام الانبیاء والمرسلین نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد. معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا حصہ پڑھا اور مجھے یہ مضمون دیا گیا تھا، ورنہ میں بہت شوقین ہوں جو یہ آپ نے اشتہار پہ مضمون دیکھ رہے ہیں عنوان، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں انصاف نہیں کر پاؤں گا اپنے موضوع پر، ناانصافی ہوگی، لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ گوشگزار کروں گا. تو اس میں اتحاد اور اتفاق کا درس ہے آیت کے اندر، اور آج اسی چیز کا فقدان بھی ہے. گھر میں لڑائیاں، گھر میں دو فرد ہوں گے وہ آپس میں تفرقہ کے شکار، چار ہوں گے آپ سے انتشار کے شکار. یعنی گھر ایک کنبے کی بات کر رہا ہوں، پھر کہیں کنبوں سے گاؤں بنتا ہے تو گاؤں تو پھر اور زیادہ، پھر علاقہ. اور برابر جب میں اپنے اس علاقے کا مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے عرب کی وہ سرزمین یاد آتی ہے، وہ دور یاد آتا ہے. ظہور اسلام سے پہلے عرب کا جو معاملہ تھا، عرب کی جو حالت تھی، بالکل مجھے آنکھوں کے سامنے وہ سین آ رہی ہے. حالانکہ وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، وہ کرتے تھے، ان کے اوپر کوئی گلہ شکوہ آیا ہی نہیں. لیکن آج
کلمہ گو لوگ نام نہاد مسلمان آپس میں انتشار کی شکار، اختلاف کی شکار، تفرقہ بازی کی شکار، فساد کی شکار کون لوگ ہیں؟ ذرا بتائیں نا مجھے. مسلمان، نام نہاد مسلمان. تو یہ نام نہاد مسلمان ابھی اس نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی ہے. ابھی مشرکانہ عقیدہ اس مسلمان کے اندر ہے، ابھی کافرانہ چال و ڈھال اس کے اندر موجود ہے. ہم نے تواریخ پڑھی، ہم نے کتب سیر پڑھے، ہم نے دیکھا کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب کا یہ حال تھا. بکر اور تغلب دو قبیلے تھے. ذرا غور سے سنیے گا، آپ نے پڑھے ہیں یہ بڑے واقعات، بہت پڑھے ہیں ہم نے، بہت سنے ہیں ہم نے، لیکن عمل کی ضرورت ہے. میرے پیارے بزرگوں، میرے عزیز جوانوں اور بچوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، لیکن صرف آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دین بہت سیکھ لیا ہے، لیکن صرف سیکھا ہی ہے، عملایا نہیں ہے. اگر عملایا ہوتا گھر فتنے نہیں ہوتے. لڑائی کون کرتا ہے؟ لڑائی کون کرتا ہے؟ جاہل. جمعہ کا خطبہ نہیں ہے. لڑائی جاہل کرتا ہے، لڑائی بے دین کرتا ہے. دیندار کبھی بھی لڑائی نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ دیکھیے عرب کی حالت اس سے پہلے کیا تھی. میں نے آپ کو بتایا بکر اور تغلب دو قبیلے تھے. 40 سال ان کی جنگ رہی. کتنے سال؟ کس بات پر؟ یہی بس کھانے پینے پر، پانی پلانے پر. ادھر اور اس سے بڑی جنگ اوس اور خزرج کے دو قبیلے، اوس اور خزرج کے دو قبیلے، دو خاندان. 120 سال ان کی جنگ رہی. 1.25 صدی گزر گئی جنگ میں، لڑائی میں. کس بات پر؟ تاریخ کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ پانی پہ اپنا وہ مال مویشی لے جاتے تھے. تو کسی کمزور کی باری ہوتی، طاقتور جو ہے اس کو مار دیتا، اپنی باری پہلے وہ رکھتا اور اپنے مال پانی پلا کر چلے جاتا. اور پھر وہ جو مارا گیا، مقتول کی ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے کہتے تھے، جب اس کا جوان بیٹا جوان ہوتا تھا، بچے تجھے پتہ ہے تیرے باپ کی موت کیسی ہوئی؟ فلانی شخص نے آپ کے باپ کو مارا تھا. اور وہ جوان ہو گیا بچہ، اور تھا جاہل. دیندار ہوتا وہ ایسا کرتا؟ تو آج آپ دیکھتے ہیں آج ایسا ہی ہو رہا ہے نا. نہیں آپ دیکھیے نا، ذرا غور کیجیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کیا ہو رہا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ اور کیا مسلمانی ہے یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، آسمان ٹوٹ آئے گا ہمارے اعمال ایسے ہیں. کلاؤڈ برسٹ یہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب جب نازل ہوگا، اس کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو پھر سیکنڈ میں نیست و نابود پوری دنیا ہو سکتی ہے. لہذا ڈرو میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غضب سے ڈرو اور دین کو سمجھو اسی طرح اور اس پر عمل کرو ہو جاؤ. یہ دعویٰ نہیں چلے گا. مسلمان کبھی لڑائی نہیں کرتا ہے. ہم نے بھی تجربہ کیا، میں بھی بڑا تھا، اس کو بھی میں جذبات میں ہوں. آپ پوچھ لیجیے میرے ہمسائے سے، عبداللہ کیسا ہے، پچھلے سال کیسے تھا، اس سے پہلے کیسے تھا. انسان کی اسلام جو ہے نا اتنی تربیت اچھی کرتا ہے، سبحان اللہ. دن بدن کل میں کیسا تھا، کل کے حیات آج مجھ بتا. اور آپ کہتے ہو یہاں جو یہ بات چل رہی تھی کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، میں اس کو اہل العلم نہیں کہتا ہوں جو فتنہ کھڑا کرے. اہل العلم اس کو کہتے ہیں جو فتنہ کھڑا کرے. عبداللہ بن ابی کون تھا؟ ذرا سنیے نا، اہل العلم تھا. عبداللہ بن ابی کون تھے؟ کون تھا؟ اہل العلم میں تھا، منافق تھا. وہ تو سوال دیگر ہے، پہلے پوچھئے وہ اہل العلم تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوتے تھے.
रसूल को मालूम हुआ, और वो भी बतौर वही मालूम हुआ, उनके अंदर ऐसा कोई गैर नहीं था। जरा कान सुन के बसीरत से सुनिए आप। बसारत तो आप देख कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बसीरत को जरा अख्तियार कीजिए। बसीरत कहते हैं दिल से सुनना, समझना, देखना। दिल से देखने को क्या कहते हैं? बसीरत। आंख से देखने को बसारत। हमें तमीज ही नहीं अभी बसीरत और बसारत। इसलिए उस इल्म को क्या करना है? इल्म तो शैतान को भी था, लेकिन शैतान कोई काम था? जैसे इस इल्म के साथ क्या होना चाहिए? अभी आप सुन रहे थे जहन्नम का तारुफ, तो उधर कौन जाएगा? पहले सबसे पहले मुत्तफक अलैह हदीस है, ये आलुल इल्म होंगे जो बगैर अमल के होंगे, जो बगैर अमल के होंगे। अल्लाह हमें महफूज रखो। लिहाजा इख्तिलाफ इस्लाम में हराम है, रब ने इख्तिलाफ को हराम कर दिया। इसीलिए बार बार अपने कलाम में रब जगह जगह फरमाते हैं वला तफर्रकू वला तख्तलिफू। और फिर हम ये बड़े अपने आप को समझते हैं हमें तो भाई, हम सब भाई भाई है ना। इसलिए रब ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामो, वअतसिमू, मजबूती से इसको पकड़ो। अल्लाह ताला की रस्सी क्या है? आपने देखा उसका रास्ता है? नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला की रस्सी देखी आपने? तो अल्लाह ताला की रस्सी से मुराद जो है वो है कुरान हदीस, इसकी मुख्तलिफ तफासीर, दीन हक, दीन मुबीन। तो ये अल्लाह ताला की रस्सी है, और अल्लाह ताला की रस्सी जो है इसको जब हम कुरान और सुन्नत सहीहा को मजबूती से पकड़ेंगे ना, तो हम कभी गुमराह नहीं होंगे, हम कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, हम कभी लड़ाई। वही लोग, अब जरा चलिए अरब की तरफ, वही लोग जो 40-40 साल आपस में झगड़ते थे, जो 120 साल मुसलसल वो जंग और लड़ाई लड़ते रहे, जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इसी अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से जब उन्होंने थामा, तो उनकी हालत क्या होगी? क्या उसके बाद भी वो लड़ते थे? लड़ते थे? तो हम क्या करते हैं? हम भी लड़ेंगे? नहीं, हम भी लड़ेंगे हम। तो इसका मतलब हम लड़ते हैं ना, तो हम हैं उनमें से। इसलिए तौबा पढ़ो आज। बस मेरा इतना ही, अब मैं कहता हूँ कि हम तौबा पढ़ें, आप देखेंगे मौसम खुशगवार हो जाएगा। मुझे 100% यकीन है, उससे भी ज्यादा, कि जब हम तौबा करेंगे, अपनी गुनाहों की मगफिरत कराएंगे, तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह सुब्हानहू तआला मौसम खुशगवार कर देगा। ये सब हमारे अमाल का, जैसे पहले आपने सुना कि ज़ाहरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, या वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, औ कमा क़ाल सुब्हानहू तआला। समझ आ रही बात हमको? तो इसलिए आज के बाद हम कोई फितना खड़ा नहीं करेंगे। अगर हमें अमन और सुकून चाहते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली चीज़ जो हमें अमलानी है वो ये है कि हम एक दूसरे को दरगुजर करें। क्या करें? हम करते हैं दरगुजर? अरे हमने वो सीखा ही नहीं है, हमने सिर्फ इंतकाम लेना सीखा। दरगुजर करना रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सिफत है। सबसे बड़ी सिफत इस्लाम में यही है, और नबी करीम की एक अजीम सिफत यही है, और हम लोगों ने इस सिफत को छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं छोड़ा? कोई अगर देखा, हमारे यहाँ एक पुराना माहौल था, कहते थे एक बार माफ कर दिया, दूसरी बार माफ, तीसरी बार बस आखिरी हद, है ना? हमारी भी अकल है ना ये। अगर हमसे भी सवाल किया जाएगा और कहेगा भी कोई, चलो किसी को गलती हो जाए, नहीं जी माफ कर दो, आज कर दिया माफ, दूसरी बार फिर हो गया झगड़ा, फिर चलो माफ कर दो, नहीं जी एक बार कर दिया आपने, नहीं चलो कर देते हैं, तीसरी बार, बस चौथे बार माफ करेगा ही नहीं। क्यों? ये बाप दादाओं की रस्म में 3 बार चलो माफ कर दिया, 3 के बाद बिल्कुल माफ नहीं करना है, इसको बख्शना नहीं है, है ना? ऐसे हमारे बाप दादाओं की रस्म रिवाज। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अलबानी साहब ने इस हदीस को सही फरमाया, एक शख्स आया, कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम में से कोई खादिम गलती कर दे, एक बार 2 बार, कितने बार हम उसको माफ करेंगे? कम नअफ़ा अनिल खादिम या रसूल अल्लाह,
आपको पता है हम कहते हैं 1 2 3 बार, और हम भी कहते नहीं यार कितने बार माफ करेंगे, 3 बार माफ कर दिया, अब कोई हिम्मत नहीं, फिर और इस किस्म का अजीब जुमला हमारी जुबान से फिर निकलता है। सांप बार बार नहीं डसा जाता, बार बार नहीं है, बार बार डसने देंगे हम सांप को? अरे हम सांप भाई को सांप समझ रहे हैं, हाय मातम इस अकल पर हम भाई को क्या समझ रहे हैं, सांप समझ रहे हैं। अभी आपने इससे पहले हदीस पढ़ी ना, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, या अर्श वाला मौला फरमाता है, ये तो फर्श वाले आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, अर्श वाला मौला फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमानदार सब भाई भाई हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमाबरदार बंदे सब भाई भाई हैं। क्या है? और हम क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं आप बताए ना, जवाब दीजिए ना मुझे। सांप कहते हैं भाई को, बार बार रास्ता रहेगा। कोई बात नहीं, अगर मेरा एक भाई मुझसे थोड़ा अकल में कम है, मुझे देखना उसका मुआवजा करना, चलो कोई बात नहीं, एक माफ बार, दूसरे बार माफ, तीसरे बार 10 बार माफ कर दो। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फी कुल्ली यौमिन 70 मर्रा, अल्लाहु अकबर, फरमाया कि दिन में 70 बार माफ कर दो, एक दिन में कितने बार? हम तो उम्र भर में कभी 7 बार भी माफ नहीं करेंगे, उम्र भर। लेकिन रसूल से फरमाते अगर किसी से गलती हो गई, खता हो गई, तो आप कितनी बार उसको माफ करेंगे? 70 बार। तो हमने माफ करना जो है इसको समझा ही नहीं है, इसीलिए अर्श वाला भी जो है अभी नाराज है। जब हम अपने भाई को माफ नहीं करेंगे, अपने हमसाये को माफ नहीं करेंगे, तो क्या वो जात जो गफ्फार है वो ऐसी गफ्फार बन गई है? क्या वो ऐसी गफ्फार बन गई है? हमारे अंदर वो बख्शिश का जो है वो मादर नहीं होना चाहिए, वो बर्तन हमारे पास तो ज़र्फ नहीं होना चाहिए हमारे पास। लिहाजा मेरे बुजुर्गों, जवानों और अजीजों और मेरी माओ और बेटियों, हमें ये सिफत हमें इख्तियार करनी है, और इंशाअल्लाह रहमान जब हम माफ करेंगे ना एक दूसरे को, झगड़े खत्म होंगे, खत्म नहीं होंगे, हाँ? फिर मेरा और तेरा कुछ रहेगा ही नहीं। जब माफ का लफ्ज आ जाएगा तो इंशाअल्लाह हम जो है माफ कर, क्योंकि वक्त गया, ये बहुत वसी मजमून है। हाँ, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह रहमान हम अफू और दरगुजर करने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। बनेंगे नहीं बनेंगे? आज यहाँ से वापस लौटते ही घर में हमारी हालत कुछ और होनी चाहिए। अगर हम घर से लड़ाई करके आएंगे अपनी बीवी से, बच्चों से, अहल-ओ-अयाल से, हमसायों से, रिश्तेदारों से, लेकिन वो बताने चाहिए, वो इस चीज का एतराफ करने चाहिए, नहीं अब्दुल वहीद की हालत बदल गई है, मौला हमें मगफूर बना दे, अल्लाह हमें मरहूम बना दे, अल्लाह हमें हमारी मगफिरत फरमा, मौला हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह हमारे जमात को मुनज़्ज़म फरमा, अल्लाह हमारी जमात को मुनज़्ज़म फरमा, और इसको हमेशा ता क़यामत कायम और दायम रख, और इसकी हिफाजत फरमा। और आज जो हमारी जमात मुख्तलिफ दुश्मन जिसके ताक में है, अल्लाह उनका मंसूबा नाकाम फरमा, अल्लाह उनको हर उस मंसूबे में नाकाम फरमा। अल्लाहुम्मा अंता खैरुल माकिरीन, अल्लाहुम्मा आज़िम फी कुल्ली मक्र या अर्हमर राहिमीन, अल्लाह हर फरेब में उनको नाकामी अता फरमा। अल्लाह अपनी हिफाजत में हम सब को रख, अल्लाह हमारी जमात को हिफाजत में रख, अल्लाह हमारे कायदीन को हिफाजत में रख। मेरे प्यारे बुजुर्गों और अजीजों और जवानों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और करम है कि हमारे कायद भी क्या है, अहलुल इल्म है, और पूरी जो जमात वो अहलुल इल्म की जमात है। क्या अल्लाह ताला का फजल और करम है। मैं कहता हूँ इस बात पर जो है ना, हम अपने रब्बे ज़ुल जलाल की हमदो सना बयान करें, उसका शुक्र अदा करें तो नहीं कर सकते, हक नहीं अदा होगा। जिस रब ने हमें इस किस्म की जमात अता की है, इस किस्म के कायद, इसलिए आज आप देखिए वो भी जितने भी हमारे बाकी लोग, हमारे लोग जो हमसे अलग थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज जोग दर जोग आ रहे हैं जमात के साथ, और वो इल्मी सलाहियत जिसके अंदर होगी और प्लस अमल होगा, फिर ही जाकर आएंगे।
हम यहाँ से वही भीड़ बनकर रहेंगे, वही भेड़िया बनकर रहेंगे, वही दरिंदा बनकर रहेंगे, क्या हमारे करीब कोई आएगा? नहीं आएगा कोई। तो इसलिए दरिंदा नहीं बनना है हमें, न वो भीड़ बनना है, न भेड़िया बनना है। हमें बनना है इंसान, और दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान बेहतर। इसीलिए रसूल से भी सवाल किया गया था ना कि कौन सा इंसान सबसे बेहतर है? तो फरमाया खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास। अनफअहुम, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं या क्या हम लोगों के लिए नफा बख्श हैं, ये लोगों को फायदा पहुंचाते हैं? हम तो सगे भाई को जो है दुश्मनी कर रहे हैं उसके साथ। अरे लोगों की बात तो सवाल दीगर है। पहले आए अपने जो एक ही शिक में मादर से तवल्लुद करने वाले, उसके साथ जो हम ये दुश्मनी कर रहे हैं, तो क्या हम मुसलमान कहलाने के हकदार हैं? तो हम उन मुशरिकों से बदतर हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे रहेगी कि हम जो है आपस में भाई बन कर रहे हैं। क्या भाई बन कर रहे हैं, भाई बहन बन कर रहे हैं, और आपस में मिलजुल कर रहे हैं। ये जिंदगी आर्जी है, ये कोई दायमी जिंदगी की है? आपके पास कोई परमानेंट दायमी? आपने देखा ना, सुना कल ही हमने जनाजा भी उठाया, और हमारा अजीज जवान 20-22 साल की उम्र का था। तो मैं जवानों से, मुझे जवान बड़े प्यारे हैं, बुजुर्ग भी प्यारे हैं, ऐसा ना कोई बुजुर्ग मुझसे नाराज हो जाए। बुजुर्गों को तो मैं और ज़रा, मैं अपने वालिद साहब से भी ज़्यादा कोशिश करता हूँ, क्योंकि वालिद मोहतरम जिंदा नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब मैं खुश होता हूँ, मैं बुजुर्ग देखता हूँ कि चलो एक मौका है, जो इज्जत उनको वालिदैन को देनी थी वो बुजुर्गों, क्योंकि रसूल ने भी फरमाया इन्ना अबर्रल बिर्रि अन यसिल अर्रजुल वुद्दा अबी, रवाह मुस्लिम, हुक्म क़ाल अलैहिस्सलाम। सबसे बड़ी नेकी यह है कि वालिदैन के जो साथी होंगे ना, हम उम्र होंगे, दोस्त होंगे, अकरबा अहिब्बा में से होंगे, उनके साथ वही सलूक करो जो वालिदैन के साथ सलूक, वो सबसे बड़ी नेकी है। यानी जो वालिदैन के साथ, और वालदा साहिबा के जो सहेलियाँ होंगी, हम उम्र होंगी, उनके साथ वही सलूक करना जो वालदा साहिबा के साथ करना होता है। तो इंशाल्लाह सबसे बड़ी नेकी हमें मिल जाती है। तो इसलिए ये तभी होगी जब हम सबके साथ, ये नहीं कि बस वालिदैन के साथ करनी, बाकियों को मारपीट करनी है, और हमारा वही वतीरा बन चुका है। कुछ लोग सिर्फ बस वालिदैन के साथ, हर एक का अपना अपना हक होता है, हर एक का। वालिदैन के हुकूक अपने हैं, औलाद के हुकूक अपने हैं, बहन भाइयों के हुकूक अपने, बीवी के हुकूक अपने, है ना, हमसायों के हुकूक अपने, रिश्तेदारों के हुकूक अपने। कोई हक एक दूसरे से कम नहीं है कम? हमसाया अगर गैर मुस्लिम है उसके साथ भी हुकूक, और ऐसे हुकूक की रसूल से फरमाते हैं कि मुझे खतरा हो गया कि शायद मत ये मेरा वारिस बनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, इतनी तालीम इस्लाम में है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए ना, और ये सोचने का मकाम है। हम लोग क्या करते हैं? तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हम यहाँ से लौटते ही अपनी रविश को बदल देंगे, अपने रवैये को बदल देंगे, अपनी हालत को बदल देंगे इंशाअल्लाह। अगर मैं बहुत तुंद मिजाज था, चर्ब ज़बान हूँ, लेकिन मुझे बदलना हो, मुझे घर में बीवी कहनी चाहिए नहीं आपकी हालत तो कुछ है, जैसे जाते मुझे सलाम करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, बच्चों को भी हुई, बहन भाइयों को साथ भी हुई, और वो महसूस करने चाहिए नहीं आज अब्दुल वहीद इज्तिमा में गया, इसकी तो हालत ही बदल गई। करेंगे हम ऐसा इंशाअल्लाह। वरना अगर वही भीड़ बन के जैसे चुमेड़ वांच ना, तो चुमेड़ अगर बनी कर गसन फिर कोई फायदा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है। फायदा तो अल्लाह हमें हिदायत अता करे। आमीन। और ये दीन जो तूने हमें दिया कितना खूबसूरत दीन दिया अल्लाह, हम इसी दीन हक जो आपने हमें अता किया है, हम तो हक नहीं अदा कर सकते आप, तो वो शुक्र अदा करने का, तारीफ है आपकी, हम तो सब बयान करने की आपने क्या अजीम दीन हमें दिया है। वरना मेरे प्यारे बुजुर्गों साथियों, न जाने हम किस पत्थर के पुजारी होते हैं,
कितना बड़ा करम है रब्बे जुल जलाल का, अल्लाह मलकल हजार लिखे आना। और फिर हमारे असलाफ की मेहनत, हमारे असलाफ की कितनी बड़ी मेहनत, और फिर हम आज मैं देखता हूँ, मुझे मैं शर्मिंदा होता हूँ कि मैं सुनता हूँ कि फलाने मुसलमान वो आपस में लड़ रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए तंजीमी तौर से हो या गैर तंजीमी कोई चीजें हो, अगर जहां भी इस किस्म की चीजें आती है इख्तिलाफ और इंतशार की, मुझे इतना दुख और सदमा होता है, मैं समझता हूँ कि मैं आसमान से गिरा। मैं नहीं इस चीज को पसंद करता हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरा मालिक, मेरा खालिक और राज़िक जो इन चीजों से मना फरमाता है, और मेरे फिर कायद, मेरे इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये चीजें मना फरमाई है। इसीलिए तो अरब के हालात ही बदल गई। वो लोग जो 1.5 सदी आपस में झगड़ और लड़ रहे थे, वो तो ऐसे हो गए, वो तो ऐसे हो गए। एसार की तो बात ही नहीं है। मसलन किसी ने आधी जमीन दी, किसी ने आधी जायदाद दी, किसी ने आधा मकान दिया, ये तो मामूली चीज थी उनके नजदीक। इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने, इतना बड़ा एहसास उन्होंने इसी इस्लाम को कबूल करने के बाद वाज़े कर दिया कि एक शख्स साद रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को कह रहे हैं कि ऐ मेरे भाई, आप जो है मेरा आधा माल, आधी जायदाद, आधी दुकान, आधा बाग, ये सब आबाद मकान आपके हैं, लेकिन एक और चीज, मेरी 2 बीवियां हैं, मेरी 2 बीवियां हैं, 2 बीवियों में से जो बीवी आपको पसंद आएगी मैं उसको तलाक दूंगा, इद्दत के बाद आप उससे निकाह कीजिए। अल्लाहु अकबर। ये इस्लाम है, ये इस्लाम की खूबसूरत है, ये मुसलमान की सिफत है हमारे अंदर है। हम तो दूसरे, जैसे मेरे किसी भाई ने कहा था कि हम दूसरी ताक में रहते हैं कि किसकी बीवी खूबसूरत है, कैसे क्या है, किसके मतलब ये शैतान जो है रस की भरी हुई, कूट के भरी है, और दावा है मुसलमानियत का। किसका? मुसलमान शाद शफात है। आप जाओ किसी गैर के पास, वो गारंटी देना चाहिए, हमसाये की तस्दीक वो करना चाहिए, और अमानत उसकी आनी चाहिए हमारे पास। लेकिन हमारे पास अमानतें ज़ाया होती, वादे उनकी खिलाफ वर्जी होती, जुबान बेलगाम है। इसलिए शिकवा है कि बारिश नहीं, बेमौसम बारिश, बेबारिश में कोई क्या बारिश है, ये तो सब हमारे अमाल है ना। तो इसलिए आइए तौबा करते, कोई बड़ी बात थोड़ा, हमारा मालिक सुनने वाला है, करीब हो, मुजीब दावत है वो। तो आइए मांगते हैं उसी से इंशाअल्लाह, और इसी से दुआ से ही मैं अपनी, लेकिन मेरा वक्त ज़्यादा, मैं इस पर भी माजरत का हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम इख्तिलाफ करें। अब आज देखेंगे अदारों में भी इख्तिलाफ, और अदारों में एक दूसरे पर नुक्ताचीनी है, मसाजिद पर एक दूसरे पर नुक्ताचीनी, और ये कहा है कि मुसलमान है, मैं शर्मिंदा, ये कहा है क्या मुसलमान, कहाँ से आ गए मुसलमान है, समझ नहीं आती मुझे। मस्जिदों पर झगड़ा, मदारिस पर झगड़ा, जमीनों पर झगड़ा, रास्तों पे झगड़ा। मुसलमान झगड़ा होता है, झगड़ालू है। आप जितनी हदीसें पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, सबसे अल्लाहुल खिसाम बताया है इसको रब ने, उसको जो दीन से गया गुजरा झगड़ालू। और आज झगड़े मैंने कहा घर में 2 मियाँ बीवियों पे झगड़े, मतलब 2 ही होते हैं ना मियाँ बीवी, बेदीनी का ये आलम है। झगड़ा मिलजुल कर रहो, मियाँ बीवी भी मिलजुल कर ऐसा रहो। और मियाँ बीवी को रब ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, इतना बड़ा इसमें फरमाया। तो इसलिए आइए हम तौबा करते हैं आज के बाद, ना हम बीवी से लड़ेंगे, ना बच्चों से लड़ेंगे, ना हमसायों से लड़ेंगे, ना दोस्तों से लड़ेंगे, ना दुश्मनों से लड़ेंगे। हमें दुश्मनों से भी लड़ने की तालीम नहीं दी जा रही है। अगर आ गए तो दिफा करना है बस। और जितनी भी जंगे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो बतौरे दिफा के हुई है, आप तारीख पढ़िए, जितनी भी जंगे रसूल के दौर में हुई सब दिफा करे, बतौरे दिफा हुई है, वो पहल नहीं की है किसी ने। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें तमाम जो कामयाबी हुई, क्यों दिफा हुई। आप देखते हैं जंगे बदर कहाँ 313, कहाँ 1000, कहाँ बगैर से साधु सामान के, और वो ब्लड प्रूफ होते थे, जीरा जिसको कहते ब्लड प्रूफ, और 14 शहीद, सिर्फ 14 शहीद।
اور وہ 70 ہلاک بڑے بڑے 70 اور 70 گرفتار. یہ کون چیز تھی جس نے یہ فتح دلائی؟ وہ مسلمانیت تھی، ایمانیت تھی. لہذا ہم نے اس اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ایمان کو بھی چھوڑ دیا. صرف یہ دنیا داری آ گئی تو پھر آسمان والا بھی پھر ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے آسمان والا ناراض ہے، اس کو راضی کرنا ہے. اور راضی کرنے کا بہت آسان فارمولہ ہے کہ بس اپنی گناہوں کی بخشش کروانی ہے، اس سے جو کوتاہی ہے وہ بھی معاف کروانا ہے. تو پھر اب آپس میں جو ہماری ہے کوتاہی ہے وہ بھی ایک دوسرے پر درگزر کرنا ہے. تو انشاءاللہ رحمٰن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرے گا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت خواہ ہوں.